सबसे बड़ी पूजा क्या है? सबसे बड़ी पूजा है किसी को न शरीर से, न मन से, न वाणी से दुख न पहुंचाना। ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। ना हम वाणी से कभी ऐसा किसी को बोले कि दुख पहुंचे, न शरीर से हम किसी जीव की हिंसा करें, और न मन से किसी को दुख पहुंचाने को सोचे। ये सबसे बड़ी पूजा है। नहीं, दूसरों पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों को सुख देना, दूसरों का हित करना, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। मंदिर जाओ ना जाओ, भगवान प्रसन्न रहेंगे, हमारी बात मान लो। और खूब मंदिर जाओ, इसके बाद आके बेईमानी, बेविचार, गंदे आचरण तो नरक जाओगे। मंदिर तुम्हें बचा नहीं लेगा, पक्की बात समझ लो। हाँ, आचरण सुधारो, व्यवहार सुधारो, लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं। धर्म निभाना होता है, धर्म मानना नहीं होता। सब मानने में लगे हैं, निभाना कोई नहीं चाहता। निभाना ये है कि तुम किसी को तकलीफ ना दो, तुम किसी को परेशान ना करो, तुम किसी से जलन मत रखो। वो मुश्किल है, पूजा करना आसान है। तो लोग पूजा करके अपना काम खत्म कर देते हैं। पर जहाँ आप निभाने पे आ जाओगे और जहाँ लगेगा कि यार गरीब है, भूखा है, इसको खाना देना पड़ेगा, तो तुम्हारे जेब से 20 रुपया नहीं निकलेगा। वो धर्म है, वो निभाना है, वो कर लो। हम, मुझे लगता है हम समय उस स्थिति में है जहाँ किसी न किसी की मदद कर पाए, चाहे हमारा कितना भी बुरा टाइम चल रहा हो। जब कर पाओ तो कर लो। सक्सेस या फेलियर सिर्फ मटेरियलिस्टिक हो सकती है। जैसे आज के समय में भी सक्सेसफुल किसको माना जाता है? आप किसी के बारे में भी बात करोगे, ओ ही इज वेरी सक्सेसफुल। व्हाई? बिकॉज ही हैज मनी, ही हैज पावर, ही हैज दिस बिग बंगलो, गाड़ी, पैसा, धन, ऐशो आराम, सब कुछ है। बट दैट्स नॉट व्हाट द सक्सेस का डेफिनेशन इज। सक्सेस का डेफिनेशन कैन बी सब्जेक्टिव, बट आई टेल यू व्हाट द गीता सेज अबाउट सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है कि जिसके जीवन में आनंद हो, खुशी हो, वो भी आंतरिक, भाई बाहर वाली नहीं कि कोई किसी सामान से मिल रही है, किसी इंसान से मिल रही है। दैट इज ऑल टेम्परेरी। जिसके जीवन में अंदर से आनंद का जो भाव है वो हो, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। In the Upanishads, it is written that even the gods envy human birth, because only a human can choose. A god is bound by perfection, a demon is bound by desire, but a human stands between the two, free to become either. Now that is the unbearable gift of being human, the fact that we have freedom. Sartre once said that man is condemned to be free. Condemned because freedom sounds beautiful until you realize it means you cannot blame anyone anymore. Not your past, not karma, not fate, and every choice you make is a declaration of who you are. In Sanatan Dharma, they call this Purusharth, human effort, human will. Even if destiny exists, it bends for those who act. In the Mahabharata, when Yudhishthir stood alone after the war, crushed under the weight of loss, he asked, "Was this destiny or my doing?" And Bhishma, lying on his bed of arrows, answered, "Destiny is the name men give to their past deeds." Meaning that you write your own fate every moment that you act. And that is why the rishis never feared karma. They saw it as clay, soft, alive, changing with every hand that touches it. Albert Camus once wrote that the meaning of life is whatever you give it. And maybe unknowingly, he was echoing what the Gita had already said. That your action is your prayer and effort is your offering to the divine. That is the real burden of being human. Not just pain, not failure, but the potential that you have. Because potential means choice, and choice means weight. The Katha Upanishad says the soul stands at a forked road. One path is Preya, pleasure. The other is Shreya, the good. The gods already walk the good, the beasts already follow pleasure. Only you, only humans stand between both, deciding every moment which one you'll become. So the question isn't what's your fate. The question is, what are you choosing right now? Because heaven and hell aren't somewhere else. There are two possibilities within you, and that is the terrifying, divine weight of being human. अगर भगवान हर जगह है तो फिर हमें मंदिर ही क्यों जाना चाहिए? बिल्कुल मत जाओ ना, हम तो बोल रहे हैं, मैंने तुमको फोर्स किया कभी? मैं तो यही बोलता हूँ ना कि आप अगरबत्ती लगाओ तो एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा आपका। मैंने भी तुमको एक पंचमुखी बजरंगबली दे रखा हुआ है। उनसे लोग पूजा के लिए बोलते हैं, हम उनसे बोलते हैं कोई पूजा की आवश्यकता नहीं। शंख बजाने से कोई भगवान नहीं प्रसन्न हो जाता है, मंत्रोच्चारण करने से कोई भगवान नहीं प्रसन्न हो जाता है। शंख बजाने के पीछे में भी उसके रीजन बताया गया, आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, एनवायरनमेंट अच्छा होता है, मंत्रों के उच्चारण से भी आपका विल पावर बढ़ रहा होता है। तो निश्चित तौर पर अनिवार्य नहीं, लेकिन कब अनिवार्य हो जाता है? जब आपको तकलीफ होती है। भगवान क्या है? भगवान किस रूप में आएगा आपको मदद करने के? इंसान के रूप में आएगा ना। भगवान के रूप में गण आते हैं और वो आपको मदद करके निकल जाते हैं। भगवान को मान, आप घर में मानो नहीं मानो कोई जरूरी नहीं कि ढोल नगाड़ा लगा के पूजा पाठ करो, पर क्योंकि ये संसार जब तक कोई चीज दिखती नहीं है ना, तब तक उसके पीछे उसका झुकाव नहीं होता है। इसलिए
उनको उस धारा में जोड़ने के लिए एक ये अनिवार्य है। हमारी पूजा पद्धति, हमारे संस्कार बहुत बढ़िया रहे, इसलिए मंदिरों में जाने की सलाह देना चाहिए और जाना चाहिए। मैं मूर्ति की पूजा करता हूँ, इसलिए तुमने मूर्तियाँ तोड़ी। मैं मंदिर में पूजा करता हूँ, इसलिए तुमने मंदिर तोड़े। लेकिन तुम भूल गए, मैं सूर्य की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो बुझा दे। मैं चंद्रमा की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो हटा दे। मैं जल की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो सुखा दे। मैं वृक्षों की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो मिटा दे। मैं उस पर्वतों की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो हिला दे। मैं इस मिट्टी की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो अपने कब्र से हटा दे। मैं अग्नि की पूजा करता हूँ। हिम्मत है अपने घर का चूल्हा अपने हाथों से बुझा दे। सनातन का मतलब भी समझते हो, जो आदि और अनंत है, जो पुरातन है, वर्तमान और भविष्य में, जो सबका जन्मदाता है। आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब यही सबको भूल है कि ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो। ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। बाप जी, ये बड़ी शिव जी तो कहीं भी रह सकते हैं, है ना? कहीं पे भी, सब जगह। एक जगह तो फिर दूसरी जगह भी हो सकते हैं। सर्वस्व है वो, सर्वस्व। खुद को दो भी बना सकते हैं वो, है ना? अरे भगवान है बेटा, वो कुछ भी कर सकते हैं। सब कुछ उन्होंने बनाया है। जो हिंदू होते हैं वो इनको पूजा करते हैं, शिव जी को, विष्णु भगवान को, ब्रह्मा जी को, है ना। मुस्लिम होते हैं वो प्रे करते हैं अल्लाह को। अल्लाह कौन है? अल्लाह उनके भगवान जिनको वो मानते हैं। अल्लाह वन गॉड, वो बोलते हैं वन गॉड। हिंदू भी यही बोलते हैं कि भगवान सिर्फ एक है, लेकिन उसके रूप अनेक है, अलग अलग रूप में उसको माना जाता है। अनेक है। हाँ, तो अनेक रूप में मतलब कि भाई इस रूप में भी भगवान है, उस रूप में भी भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, ऐसे करके बहुत सारे, परशुराम भगवान है, भगवान ने अवतार लिए, ऐसे करके हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म ऐसा मानता है। हाँ, शिव जी भी ऐसे ही, शिव जी, पार्वती माता है, सारे एक ही। हाँ है, सारे एक ही। क्रिश्चियन है वो भी बोलते हैं गॉड जीसस क्राइस्ट। और जो सिख हैं उनके 10 गुरु हुए हैं, और सबसे पहले गुरु उनके गुरु नानक देव जी थे, लेकिन वो मानते 10 गुरु को हैं। 6th रिलीजन क्यों नहीं होता? अरे बड़े सारे हैं, और भी हैं। कितने हैं? यहूदी है जो इजराइल में होते हैं, वो यहूदी हैं, हिब्रू बोलते हैं उनको। और पारसी भी होती हैं। 8वां है? बुद्धिस्ट। हाँ, बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट तो यही रहते हैं हमारे बगल में, जिन्होंने ये झंडे लगाए होते हैं। तो सारे रिलीजन लेकिन ये बोलते हैं कि भगवान एक है। तो हमेशा याद रखना है कि हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना है। सबके रिलीजन को क्या करना होता है? रिस्पेक्ट करना होता है। तेरा रिलीजन गलत है ये कभी नहीं होता, सबका रिलीजन सही है। जिसको जो मानना है उसको वो मानने दो, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं शो करनी, कभी उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, ठीक है। जहाँ शास्त्र है वहाँ शस्त्र भी है। यदि देवी के हाथ में कमल है तो त्रिशूल भी है, और यदि कृष्ण के हाथ में बांसुरी है तो फिर सुदर्शन चक्र भी है। महादेव भोले हैं तो हाथ में त्रिशूल भी है। तो जहाँ क्रोध आना चाहिए वहाँ क्रोध आना ही चाहिए, वो आवश्यक है, वो धर्म है। बट एट द सेम टाइम देयर इज ऑल्सो द अदर साइड, जहाँ करुणा का भाव होना चाहिए, जहाँ सद्भावना का भाव होना चाहिए, वहाँ वो वैसी ही रहने चाहिए। Non-violence is good, but so is the punishment of the wicked. Most of the world, especially in India, has been fed a massive lie about what this word actually means. You have been told that non-violence or ahimsa is a license to be a coward. You think that because you never resist, you never push back and never stand up for yourself, you are somehow moral and spiritual. But you aren't either of them. What you are is just harmless and weak. There is a massive difference between being a peaceful man and being a weak man. And a lot of you don't understand that distinction. Let me give you an example. A rabbit isn't non-violent. A rabbit just lacks the options to be anything else. So to truly practice ahimsa, you must first have the capacity for total destruction and then choose to keep it in check. In the Mahabharata, they say ahimsa is the highest dharma. But look at the context of when that was said. This line was literally written for warriors at the epicenter of the greatest bloodshed in human history. It wasn't written for people like us who were hiding from the world. It was written for those who were standing in the middle of a literal storm of death and had to decide when the sword was necessary for justice. And this is what Aristotle meant when he talked about the golden mean. Virtue is always found between two extremes. Courage is the center point between being a reckless idiot and being a coward. Ahimsa works the same way. It is the mean between blind aggression and pathetic passivity. Both of those extremes are failures. The modern world has made passivity this virtue, but harm doesn't disappear just because you refuse to engage it. If you don't engage with it, it just moves on to the people who are too weak to defend themselves. And when you refuse to stop evil because you want to keep your hands clean, you aren't being good. What you are is an accomplice to that evil. Strength and goodness are the same thing. If you don't have the power to do harm, your peace is a joke. Real ahimsa
is not the absence of power. It is power that is perfectly governed. It is the clarity to know when to restrain yourself and the courage to act when the wicked need to be stopped. Stop calling your weakness a virtue. A peaceful man who cannot fight when the world demands it is not creating peace. He's just creating a vacuum for the wolves to fill. The standard isn't staying silent. The standard is being dangerous enough to end the threat, but disciplined enough to never misuse that force. मुझे तो आज तक नहीं समझ में आ रहा है कि लोग भगवान पर क्यों श्रद्धा करते हैं। आप अपने कर्मों को संभालिए, फिर अगर रो न पड़ो भगवान की कृपा में तो हमें बताना। कर्म करो खोटे, धर्म विरुद्ध कर्म करो और दोष दो भगवान को, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं, ये गलत विचारधारा है। विश्वास करो भगवान तुम्हारे को अनंत माताओं से बढ़कर प्यार करते हैं। 4 व्हीलर से जा रहे थे कहीं, तो एक कुत्ता उनकी लापरवाही से उसको भयंकर चोट लगी, बट वो बहुत करा रहा था, तो ये आगे चले गए किसी कारणवश। इनको लगा कि वो पधार गया होगा, ऐसा लगा। तो महाराज जी ऐसा अपराध बन गया, तो उसका मोचन के लिए क्या उपाय? कार चढ़ा दो, कह दो पाप मोचन बताओ। आप समझो तुम्हारी आंखें हैं, सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। अगर ऐसी घटना घट जाती तो आप उतरिए, आप दयावान बनिए। उसका कोई नहीं है, उसको आप देखिए कि क्या उसकी हालत, उसका पैर टूट गया, उसका क्या पता लगाइए, यहाँ कोई पशु अस्पताल है क्या, आप उसको ले जाइए। तो हर प्राणी का मोल समझना, ये सब है अनमोल, ये सब है अनमोल। हर प्राणी का मोल समझना, ये सब है अनमोल, ये सब है अनमोल। शिव ही है हर प्राणी में, हर प्राणी शिव का धाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। जो आपने ज्ञान जाना उसका आचरण में उतारा आपने। आप जितना दूसरों को उपदेश कर रहे हैं उतना आप अपने अंदर ला रहे हैं, आप अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, तो इसमें खाली पाया जाएगा। मित्रता करो लेकिन दोस्त को पवित्र रखो, अपनी दोस्ती को पवित्र रखो। दोस्ती का मतलब विषय वासनाओं का खेल नहीं है, दोस्ती का मतलब मनमानी आचरण नहीं है। अगर एक दोस्त फिसल रहा है तो पकड़ लिए, नहीं हम दोनों दोस्त हैं। ये देखो भाई, मैं शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहा हूँ, मेरे तो महादेव भी राजी हो गए और मेरे तो भाई काल भैरव भी राजी हो गए। अब ये बताओ कि ये शिवलिंग अब पवित्र हुआ अपवित्र हुआ? अब मैं इस कुत्ते को लात मार दूं तो मेरा महादेव राजी हो जाएगा भाई? अब खुद बता दो भाई। और भाई अपने अपने नजरिए की बात है, मेरे को इन जानवरों में भगवान दिख जाता है भाई। असली चीज बता रहा हूँ, इन जानवरों से दिल लगा के देखो। मैं कह रहा हूँ भगवान तुम्हें ना दिख जाए तो, और भगवान तुम्हारे झोली में वो सब कुछ ना दे दे जो तुम्हें चाहिए तो। अब देखो सुकून से सो रही है दूध दाद पी पाके, तो भाई असली पूजा है ये। हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मानने वाले लोग हैं। एक तरफ है दशरथ के बेटे, है ना, 4 बेटे दशरथ के, एक तरफ है शाहजहां के बेटे। एक तरफ लड़ाई है कि गद्दी मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा, और एक तरफ लड़ाई है कि भाई गद्दी तुम्हारी, गद्दी तुम्हारी, गद्दी तुम्हारी। बस यही अंतर है हमारा। एक तरफ सब लुटा देना है और एक तरफ सब ले लेना है, चाहे पिता को मारना पड़े, चाहे भाई को मारना पड़े, और एक तरफ चाहे अपने भाई की पादुका ही क्यों ना रखनी पड़े, लेकिन राज्य भाई का ही। ये अंतर है हमारा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा।
चित्र की पूजा एक बार नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन चरित्र का अनुसरण नहीं करेंगे तो जीवन में कोई बदलाव आना बहुत मुश्किल है। आप श्री राम को मानते हो, श्री कृष्ण को मानते हो, महादेव को मानते हो, दुर्गा जी को मानते हो, जिसको भी मानते हो, उनके चित्र के साथ साथ उनकी चरित्र की भी तो पूजा करना सीखिए। In our tradition, men and women are not equal at all. Did you know that? You did not know that. All the women here, all the Bharatiya women, you're not equal to men. Even when you say, you know what, I want equality. We want to be equal to men. And you know what I say? You're not equal to men at all. In our culture, in our tradition, Lakshmi comes first and then Bhagwan Shri Narayan. Sita before Bhagwan Shri Ram. Radha before Krishna. Parvati before Bhagwan Shankar. The feminine is already above the masculine. A round of applause. Love that. Love the energy. Love the swag as well. That is true masculinity. The feminine. The energy. The power. The Shakti. Even Bhagwan says, the God says, I cannot do anything without this energy, without the Shakti. So in our, the feminine come first, and then the man, then the masculine. But आज भी हमारे मंदिरों में से यही आवाज आती है, विश्व का कल्याण हो। किसी एक कास्ट, रिलीजन, क्रीड की हम बात नहीं करते कि हाँ सिर्फ इस धर्म का कल्याण हो और बाकी सबका विनाश हो। विश्व का कल्याण हो और अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और सबका कल्याण हो। सो इट्स ऑलवेज फॉर ऑल ऑफ अस।